Hi friends, a very warm welcome to you on the platform of Just Law Academia powered by Abhimanyu IAS. See, today we will be discussing something about the crash course which we are going to commence from 15th of June 2021. Many students are inquiring as to, sir, what you would be preparing, how you would be preparing, what kind of stuff you will be sharing it with us. So, in order to satisfy the queries of all the students, we find it our moral obligation to discuss it with you in detail. All the mentors are present with us today. They would be interacting with you in 5 to 10 minutes, wherein they will let you know the strategy to prepare the exam. See, methodology of each and every exam is carved out differently. We have to take in, keep it in mind lot of constraints such as time, constraints such as syllabus, constraints such as the preparation, number of other factors, so they will be sharing it with you their own experiences as well, and how to prepare for this exam too. तो अगर हम कुल मिला के देखें तो हमारे पास में तकरीबन 14 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से एविडेंस जो एक्ट है दैट इज़ कॉमन इन सिविल एंड क्रिमिनल दोनों में पूछा जाता है, ठीक है। तो अब इन सब सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले तो क्या है कि द बेसिक प्रोविजंस, देयर बाइफर्केशंस, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड देन अल्टीमेटली कम्स द conceptual clarity of the particular section. Then the latest and landmark judgment which has been discussed by the Supreme Court, okay, with regard to those provisions, we should know it when we are preparing for the pre, because we cannot prejudge as to what provision would be touched and what question could be asked, but we cannot leave any provision for which we do not have any clarity. So, we want our students to be very confident, we want our students to be well aware with each and every concept and the provision, so that they feel confident while sitting in the examination, and they should not feel कि हमें ये classroom में करवाया नहीं गया, ये हमारे साथ डिस्कस नहीं हुआ. So, before I come to the methodology part, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अभिमन्यु IAS जो है, it is not a new establishment. It was established way back in 1999. So, it's a vast experience of 21 years of academic excellence it has got. Number of aspirants of IAS, IAS and HCS services, state civil services and the central civil services, they produced. Fine. तो एक तो ये है कि एक वेल एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत ही कंड्यूसिव है. टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो हाइब्रिड मॉडल इनके पास में अवेलेबल है, जिसमें ना केवल कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन मॉड्यूल, बल्कि जो लाइव क्लासेस में चल रही हैं वो भी आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने घर पे बैठे ही प्रिपेयर कर रहे हो. तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक गोइंग टू बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू. यू विल बी गेटिंग अ फीलिंग ऑफ सिटिंग इन अ क्लासरूम एंड यू कैन इवन आस्क द क्वेश्चन आल्सो. मीन्स वी आर गोइंग टू हैव एन इंटरेक्टिव सेशन विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी विच दे हैव विद देम. फाइन. सो इसके अलावा जो फैकल्टीज हैं, दे आर वेरी ट्रेन्ड, क्वालिफाइड, हाईली कॉम्पिटेंट and very helpful to you. On each and every subject they have a vast experience. I will be telling them about their experience and everything. पहले मैं अपने बारे में बता दूँ थोड़ा सा, कभी मैंने अपने बारे में बताया नहीं. Myself Raj Samyal, I am practicing law for last about 18 to 20 years in the Punjab and Haryana High Court. Fine. So अभी मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है दैट इज़ गोना गिव यू लॉट ऑफ एड एंड हेल्प लाइक टू प्रिपेयर द एग्जाम, बिकॉज हमें बीइंग लॉयर पता है, बिकॉज वी आर इन एक्टिव प्रैक्टिस, कि कौन कौन सा किस लॉ में किस तरह की इन्वॉल्वमेंट हुई है और क्या सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रोविज़न के ऊपर में क्या नया लॉ इनसेट किया है जो आपको हेल्प करेगा और जिसकी पॉसिबिलिटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है. तो ये एक आपको हेल्प रहेगी. दूसरा ये है कि जो लेटेस्ट केस लॉस और द केस लॉ विच वी हैव प्रैक्टिकली हैंडल्ड, द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव बीन हैंडलिंग इन अ day-to-day life, we would be sharing it with you also, which would again give you a great insight and help to prepare the exam thoroughly and exceptionally good as compared to the other students, right? So friends, मैं ये नहीं बोलता कि this is the only mode by which you can prepare, लेकिन ये मेरा मानना ज़रूर है कि without mentorship one cannot attain the progress in life which he could attain really with the help of the mentor. So mentorship plays a very important role in life, because you become more disciplined, focused, and you become a performer and achiever, and I think this is what you require. Almost everybody has an access to all the books, but those who are having an access to the mentorship, I think they would be able to qualify easily or confidently too.
फाइन। सो ये एक हमारा जो रोल रहता है वहाँ पे कि हम आपको ट्विस्ट कर सकें, बता सकें, समझा सकें, चला सकें, एक सपोर्ट सिस्टम दे सकें। तो उसके लिए हम लोग आपकी मदद के लिए यहाँ हैं। तो वट एवर क्वेरी डाउट्स कम्स टू इन योर माइंड एंड यू वांट टू डिस्कस, यू वांट एलेबोरेशन, वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट। फाइन। सो नेक्स्ट लेट्स प्रोसीड फर्दर। दिस इज समथिंग अबाउट द सिलेबस आई डिस्कस्ड। हाँ, नाउ हमारी मेथोडोलॉजी क्या है? देखिए, पहले हमारा जो फोकस है दैट इज ऑन प्री एग्जामिनेशन। उसका रीज़न क्या है मैं आपको समझाता हूँ। प्रिलिमिनरी इज़ अ गेट वे टू द मेन एग्जामिनेशन। अगर प्री में आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो तो मेंस आप भूल जाइए कि आप मेंस में बैठने वाले हैं। तो अब प्री के लिए हमारा जो ये एग्जॉस्टिव सेशन रहेगा तकरीबन 2 महीने का, 60 दिन का, उसमें हम आपको CPC, CRPC एंड कॉन्स्टिट्यूशन इससे शुरू करवा रहे हैं, विच वुड बी ऑफ 23 डेज, मीन्स 1.5 आवर डेली क्लास होगी। एक सब्जेक्ट की CPC की, फिर 1.5 आवर फॉर CRPC एंड 1.5 आवर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। तो टोटल आप मान के चलिए 4 घंटे की क्लास विद ब्रेक आपको मिलेगा, जिसमें हम लोग न केवल लीगल कॉन्सेप्ट, ऑल द प्रोविजंस एंड द इंट्रिकेसीज ऑफ लॉ प्लस द लेटेस्ट जजमेंट एंड गाइडलाइंस ऑन द वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच वी आर गोना कवर। तो 3 mentors would be teaching you 3 classes per day for 3 to 4 hours every day। ठीक है। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि सर हमें मेन का टाइम नहीं मिलेगा। देखो, मोर और लेस व्हेन यू आर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग इट, यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द मेन एग्जामिनेशन। तो ऐसा अपने दिमाग में बिल्कुल मत रखिए कि दिस इज नॉट गोना हेल्प यू इन द मेन एग्जाम, रादर दीज is gonna help you for the main examination, although हमारा जो prime focus है that would be on the preliminary exams preparation। Reason being, we want you to through it first and then you sit for the main। For main obviously हमारी जो strategy है that would be somewhat different, ठीक है। बट यहाँ पे जो लोग भी ज्वाइन करते हैं वो प्री एज वेल एज मेन का दोनों का तैयारी उनका पैरेलली चलेगा। तो सिमिलरली इंडियन एविडेंस एंड एक्ट एंड देन Indian Penal Code, contract and sales of good, we will be starting and covering it in 20 days. Then 5 days for accessory limitation and the partnership. For Hindu law, Muslim law and Courts Act, we will be taking 7 days. Registration Act, Rent Act and legal GK will be covering 5 days. See, current affairs plays a major role. 7 to 8 questions you can find out of 125 questions of this area, current affairs. तो इसके लिए हमारे पास में देखो, आपको एक पोर्टल की एक्सेस जो है मिल जाएगी, जहाँ पे रोज़ करंट अफेयर अभिमन्यु IAS की तरफ से डिस्कस हो रहा है। ठीक है। दूसरा ये है कि क्लासरूम में भी हम लोग जो लेटेस्ट GK हैं, करंट अफेयर्स हैं या लीगल GK हैं, उसकी हम डिस्कशन डेली बेसिस पे करेंगे। सो दिस वुड रिमेन कंटिन्यू फॉर अबाउट 5 डेज। सो 60 डेज में हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। अब टाइमिंग जो है वो क्या फाइनल होगा और कितने दिन हम वीकली क्लासेस लेंगे, दैट इज व्हाट यू वुड बी कन्वेड टू। फाइन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर क्या कवर करने वाले हो? तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन प्रोविजंस ऑफ ऑल द रेलिवेंट लॉज, प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, फ्रॉम द क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी। सेकंड, इंडियन पॉलिटी, बिकॉज दिस इज द मेजर पार्ट विच आई हैव नॉट डिस्कस इन दिस सिलेबस, बट 10 to 15 questions you can expect from this area. So we are going to put an ample time on this also to make you prepare, fully. Then landmark, important in the recent judgments of the Supreme Court, although we have been discussing it with you on a regular basis in our free of cost classes, ठीक है, और इवन लीगल कॉन्सेप्ट में MCQ बेस्ड टीचिंग में प्रीवियस एग्जामिनेशन पर उसमें भी हमने ये सब डिस्कस किया है, और जजमेंट बेस्ड सीरीज एक अलग से बनाई है जिसमें हम जजमेंट डिस्कस कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली दैट वुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस क्रैश कोर्स एंड विच यू विल बी getting in the time to come. Then you would be getting a weekly judgment. See, our endeavor is to keep you updated, ठीक है, fully. तो उसके लिए क्या है कि आपको एक वीकली जजमेंट का PDF फॉर्म में जो कंपेंडियम है वो मिलेगा. इधर यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम दी साइट और यू कैन गेट इट इन योर ईमेल एज वेल. दोज हु गेट एनरोल्ड दे विल बी गेटिंग ऑन देयर ईमेल एज वेल ऑन द वीकली बेसिस. ठीक है. इसके साथ में फॉर योर प्रिपरेशन वी आर गोइंग टू गिव यू कॉम्प्लीमेंट्री सीरीज ऑफ 30 टेस्ट MCQ बेस्ड जो आप अपने एग्जाम से पहले तैयार कर सकते हो, जिसमें हमने डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट एंड फ्रॉम डिफरेंट एरिया. इसमें टफ भी मिलेंगे आपको क्वेश्चंस और जो है वो थोड़ा इजी भी मिलेगा और सिंपल भी मिलेगा. जिस तरह से एग्जाम जो है डिज़ाइन होता है उसी तरह से हमने ये टेस्ट सीरीज जो है वो डिज़ाइन की हैं. तो यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प रहेगी तो देखने के लिए कि प्री में जो मॉडल है वो कैसा रहता है. ठीक है. देन इंपॉर्टेंट
जो केसेस हैं उनकी जो जजमेंट है उनकी जो डिस्कशन है दैट वुड बी द रेगुलर फीचर ऑफ दिस प्रोग्राम, ठीक है। देन करंट अफेयर जैसा मैंने पहले डिस्कस किया कि वो आपको एक्सेस भी रहेगी, उसकी डिस्कशन भी हम डेली बेसिस पे करेंगे, क्योंकि 7 से 8 मार्क्स का भी अगर आपको पूछा जाता है तो दैट वुड आई मीन कैरी अ ह्यूज वेटेज, एंड इफ यू आर एबल टू आंसर दोज थिंग्स एंड यू विल डेफिनेटली बी एबल टू सिक्योर द एज इन द एग्जामिनेशंस। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फर्दर, नाउ आई वुड लाइक टू इन्वाइट मिस्टर प्रीतम शर्मा with me. See, he is the man who is a scholar in constitution. He is the one who has authored few books also, and he is the one who has trained the UPS aspirants, and with him his help and guidance and supervision, number of aspirants have now gone into the services and performing the remarkable job in their respective services. Fine. So I would love to introduce to you Mr. Preetham Sharma. Please help me to. Thank you so much, guys. If time allows, I will get back to you. Okay, I hope I am audible. So good afternoon, friends. Right, my wonderful colleague Rai Samyal has spoken too much about me. I don't deserve this much accolade, in fact. Right, he is an authority and institution in his own right, and we have many other institutions, who are sitting out there, right, so far as judicial preparation is concerned. But I don't think Raj sir has left anything to be talked about. He has talked about quite elaborately so far as the parameters of judicial preparation is concerned. Okay, he has touched almost all the nuances which are required and which must be religiously followed, right, in order to crack this exam with flying colors. तो मैं और इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकता क्योंकि सब कुछ उन्होंने बता दिया, बट मैं सिर्फ आपको सिर्फ ये इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि if I'll be getting an opportunity of teaching you guys, then मैं civil law में कुछ subjects like Indian Contract Act, Sales of Goods Act, Partnership Act, and above all constitution law. I'm not calling myself an authority, but that is my forte, in fact, right, because it has been almost over a decade teaching constitutional law and keeping the track of all the judgment, landmark judgment of the Supreme Court. Okay, that has become a necessity in our field of civil services coaching also. तो बट हाँ, जहाँ तक हमारे पढ़ाने की स्ट्रेटजी होगी, आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द फैकल्टी मेंबर्स, वी शैल नॉट बी हम सिर्फ आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही सिर्फ डोल आउट नहीं करेंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उसका टिक मार्क करा दिया, ठीक है, उसके पीछे रीजनिंग क्या है, उसके साथ कौन कौन से कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में दोबारा पूछा जा सकता है या इसके और क्या क्वेश्चंस लाइकली क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है, हम कवर करेंगे. ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, इनफैक्ट यही हमारी कोर स्ट्रेटजी है, सो दैट किसी पर्टिकुलर टॉपिक के आपको जैसे जिस मर्जी डायमेंशन में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप एटलीस्ट उसको कंफर्टेबली आंसर कर सकते हो, ठीक है. अगर मैं आपको सपोज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपको प्री में ऐसा क्वेश्चन आता है, राइट, तो बेसिक स्ट्रक्चर्स के कितने लाइकली क्वेश्चन बन सकते हैं. सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं बन सकता कि बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस में दी, ठीक है, इसके 10 क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में बना के बता दूंगा कि बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से आया, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्यों इनर्शिएट की सुप्रीम कोर्ट ने, बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन केशवानंदा भारती केस को दूसरे और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, कितनी जजेस है, क्योंकि इन मैनी रिस्पेक्ट्स बेसिक स्ट्रक्चर का जो केस है केशवानंदा भारती केस, इट वाज ए लैंडमार्क और वाटरशेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में इन इट्स ओन राइट. उसका क्या रीज़न था. तो बहुत से क्वेश्चंस ऐसे ही हम जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे या दूसरे सिविल लॉ पढ़ेंगे या जो मैं सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाऊँगा, राइट, उसके हम हर एक कंसेप्ट के इतनी डायमेंशंस ट्रेस करेंगे, राइट, और यही हमारी स्ट्रेटजी रहेगी. इनफैक्ट शायद हमारा कोर फीचर जो कोचिंग का है या हमारी जो स्टडी का, राइट, शायद यही कोर फीचर होगा विच विल मेक अस डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर institutions imparting judicial coaching for that matter, because this is what we stand for and this is what shall be our identity. Okay, so without wasting your time more, okay, I'll request my another
wonderful colleague, Arun Sood sir, right, who will be enlightening you little more on the modus operandi that we shall be following in judicial teaching, judicial coaching, right? So Arun Sood sir, please. Thank you, sir. हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि चाहे वो राज समयाल सर हों और या प्रीतम सर हों, उन्होंने आपको बड़े इलेबोरेटिव मैनर में बता दिया कि क्या क्या हम कैसे कैसे करने जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कुछ खास बचा है बताने के लिए, लेकिन मैं ट्राई करता हूं कि कुछ और बातें की जा सकें इस पर। सो जैसा कि आप जानते हैं 15 जून से वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर क्रैश कोर्स विच विल बी कवरिंग ऑल द सब्जेक्ट्स। अगेन एज राज सर हैज़ ऑलरेडी मैंशनड, आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसको बड़ी तेज़ी से कुछ करवा दिया जाएगा और उसको कोई बेनिफिट आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो आपको ये सभी सब्जेक्ट्स जो आपके सामने स्क्रीन पे हैं विल बी कवरिंग ऑल दीज, उसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जाएगी अलॉन्ग विद रिसेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट्स। तो आपको उसका बेनिफिट डेफिनेटली मेंस में होने वाला है। उतना इलेबोरेटिव मैनर में जब हम मेंस के लिए उसके बाद शुरू करेंगे अपना कोर्स, उसमें करवाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि इट इज़ ओनली फॉर प्रीलिम्स, दिस इज़ नॉट द केस। तो आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये हेल्प करेगा। और जो स्टूडेंट्स अदर एग्जामिनेशंस की कोई तैयारी कर रहे हैं, इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम एज वेल। और अगर हम बात करें कि इनकी वेटेज की, तो क्रिमिनल लॉ, राज समयाल सर विल बी टीचिंग क्रिमिनल लॉ. Along with that, he'll be taking up Hindu law as well and some other small acts also. Pritam sir would be taking up constitutional law. He is an authority on that. I can tell you that because he has been imparting teaching on that for more than a decade to the civil servants, which is a big achievement. He himself has qualified, UPSC. तो ये this is not a small achievement. तो जो मेंटर्स हैं दे आर वेल क्वालिफाइड एंड दे आर वेरी वेल वर्स्ड विद द होल सिलेबस एंड हाउ टू गो अबाउट इट. तो ये सभी सब्जेक्ट्स को हम विल बी गिविंग द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एज वेल एज आपको प्रीलिम्स कैसे क्रैक करना है. अब अगली बात जो आती है वो ये कि कितने मार्क्स सर हमें काफ़ी रहेंगे. तो देखिए ये जो है स्टेट वाइज स्टेट टू स्टेट डिफर करेगी ये बात, कितने मार्क्स आपको चाहिए किस सब्जेक्ट में, मतलब किस प्रीलिम्स में. क्योंकि अभी वी आर फोकसिंग मेनली ऑन हरियाणा, नॉट दैट कि हरियाणा के बच्चों को फ़ायदा होगा, लेकिन क्योंकि हरियाणा का पेपर वी आर एक्सपेक्टिंग इन अ वेरी नियर फ्यूचर, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जैसे मालूम है प्रीलिम्स में 125 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे. एवरी क्वेश्चन विल बी ऑफ 4 मार्क्स. उसमें अनलाइक अदर स्टेट्स हरियाणा में अभी जो आ रही है 5 ऑप्शंस आ रही हैं. तो अगर आपका गलत आंसर होता है, नेगेटिव मार्किंग है उसके लिए, तो 0.8 मार्क्स आपके कम हो जाएंगे, यानी कि 20%. अगर आप 5 क्वेश्चन गलत करते हैं इट विल बी इक्वलेंट टू 1 राइट क्वेश्चन. तो आपको ध्यान में रखते हुए अटैम्प्ट करना है. वो सारी स्ट्रेटजीज विल बी डिस्कसिंग. और दूसरी बात, कितने क्वेश्चन, तो अगर हम पास्ट एक्सपीरियंस से इसको जज करने की कोशिश करें तो अब की बार जो कट ऑफ है, आई वुड से इफ़ यू कैन मैनेज टू डू 100 करेक्ट क्वेश्चंस, सी इफ़ यू अटेम्प्ट 110 एंड 100 आउट ऑफ दोज 110 आर करेक्ट, देन यू हैव अ ब्राइट चांस. ऐसा इसलिए क्योंकि हर साल जो बच्चों की तादाद है वो बढ़ती जा रही है इस एग्जामिनेशन में. रीज़न क्या है? हरियाणा में लैंग्वेज का बार नहीं है, चाहे वो यूपी है या बिहार है या दिल्ली है या राजस्थान है, पंजाब, हिमाचल, तो ये सभी नेबरिंग स्टेट्स पार्टिसिपेट करती हैं. तो हर साल हम देखते हैं देयर इज़ ए ह्यूज इंक्रीज इन नंबर. और दूसरी बात, क्या आप मेंटर्स के बिना ये तैयारी कर सकते हैं? तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन अगेन इट विल बी मैनी फोल्ड टफर देन अदरवाइज इट इज़ विद द मेंटर्स. तो ऐसा नहीं है आप कहीं से भी कोचिंग ले रहे हैं, लेकिन अगर मेंटर्स, यू हैव गोट द राइट मेंटर्स एंड यू हैव गोट द राइट बुक्स, राइट अमाउंट ऑफ टाइम यू आर अफोर्डिंग टू गिव ऑन एवरी सब्जेक्ट as per your strategy. If you work, there is no way that you will not succeed. So we want that you go through with flying colors in this examination. और जैसे कि राज सर ने बड़ा elaborate तरीके से डिस्कस कर दिया है, तो I don't think there is need to elaborate it even further. तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हैं ये जो लॉन्च कर रहे हैं हम, यू गो थ्रू द सिलेबस, यू गो थ्रू व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यू कैन वॉच दिस and you can make up your mind. If you wish to join us, you can contact us. So this is all from our side. So you have known the mentors, and Mr. Raj sir would be taking 2 minutes more. So he'll be concluding this. Sir.
Thank you, Arun and Preetam, for supplementing me in highlighting our plan for the students. लाइक देखो, 2-3 बातें अहम हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ लास्ट में. पहली चीज़ तो ये है कि 23-22 ईयर्स की एज में हम लोग LLB कर लेते हैं. फाइन. इसको करने के बाद में अब 35 ईयर्स ऑफ एज तक हमारे पास में जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सिविल जज जूनियर डिवीज़न का एग्ज़ाम देने का वक्त है. अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे कोई अटैम्प्ट का लिमिटेशंस नहीं है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. पहली चीज़. दूसरा चीज़, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ की वजह से हम लोग किसी भी स्टेट एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं. ठीक है, कोई बार नहीं है. तो यू हैव एम्पल स्टेट एम्पल एग्जाम्स एंड एम्पल चांसेस टू शो योर वर्थ, टू प्रूव योर वर्थ. फाइन. तो उसमें अगर आपका मान लीजिए एक अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिस एक्सपीरियंस विच यू आर गोना गेन, it is not going to be wasted. It will help you in your personal practice, or if it will help you in getting suitable job, it will help you in qualifying the allied exams also, और judiciary तो आप कर ही लोगे जब आप हमारे साथ हो. ठीक है, इस जर्नी में. तो अब आपसे हमें क्या चाहिए? a bit of sincerity, a focused attitude and little bit of discipline also, because we strongly believe the people and the persons who are consistent, students who are consistent and focused in their life, they would be able to make it through even if they are not very efficient, because efficiency you would attain over a period of time with our help, aid in the regular classes also. These classes have been meant for those who really want to devote their valuable time to qualify these prestigious exams. 50 से 60 हज़ार बच्चे ऑल ओवर इंडिया इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं हर साल. ठीक है, सीट्स की कोई कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो एक एटीट्यूड की, और कमी है एक पैशन की, कमी है एक अर्ज की. ठीक है, तो अगर आप समझते हो कि यू फाइंड योर सेल्फ टू बी द मोस्ट फिटेस्ट पर्सन फॉर दिस एग्जाम, you want honor, you want respect, you want status in life, you want a security, or you really want to transform the life and lifestyle of others also, then this career is meant for you, and we are there to help you out with the full enthusiasm, passion, and I would say with the utmost sincerity we are with you. Fine. So guys, make up your mind, get yourself enrolled for the crash course, and achieve it with the grace. Fine. So strive hard. Thank you so much for hearing us patiently. God bless you.